welcome to Nirmal Bang, ladies and gentlemen. I'm Hiral Dadia. We have with us Kunal Shah, Head of Commodities Research, joining in. Kunal, welcome to the show. Kunal, let's start with a couple of events that are lined up during the week and then understand what is the impact. Firstly, how the dollar index moves is going to be crucial across in terms of getting us a direction. With the dollar index, we have the US manufacturing and service PMI data as well that is expected to come in. And that is something which could impact the dollar index, which could have an impact on base metals as well as gold prices. And lastly, if you see in terms of the ECB meeting, the policy decision, which is key also, which is lined up, where we are expected to see a hike in rates for the first time since 2011. So taking all these macro events into consideration, what's the sense that you're picking up? Okay, so first, good afternoon, everyone. It's nice to see so many people have joined today. I'll speak in English because there are people who are from South region. They want to hear it in English, and I'll also translate in Hindi also. So first, today we don't have any data, so that's a good news. So generally we wait for any data, on the basis of data we determine a call. But what has happened today morning is, last week there was a problem within China's real estate market. So in China, all the people who have bought the home, under construction home, they were forced to pay the EMI for the same. And they say that we are not going to pay the EMI, and that has triggered a big crisis in China. Today morning, Chinese government has come up with a notification that all the banks will have to provide adequate amount of liquidity to the real estate developers. And because of that, the entire market have basically forgot the worry about the problem which we had last week. And that's why there was a sharp short covering plus fresh long which was built in. Number two, the dollar index have peaked out. So last week, if you remember, on Thursday, dollar index made a high of 109.20. And from there, it is right now trading at around 107.44. So today morning, it was at the start of the day, it was 108.10, 108.20, and now it is 107.40. So the dollar index is peaked. So this is the time, buy at dips is the strategy for commodities. I'll translate in Hindi. जो थर्सडे को जो डेटा है, लास्ट गुरुवार को जो डॉलर इंडेक्स ने हाई मारा था 109.20 का, वो पीक आउट होके 108.50 हुआ. आज मॉर्निंग को 108.20 था, अभी 107.40 चल रहा है. तो डॉलर इंडेक्स पीक हो गया है और इसी के कारण कमोडिटीज में ट्रेंड बाय एट डिप्स का ही है. दूसरा, चाइना ने अपने रियल एस्टेट सेक्टर के लिए आज बड़ा रिलीफ अनाउंस किया है. चाइना ने अनाउंस किया है कि वहां पे जो भी बिल्डर्स है, उनको जो बैंक्स है, उनको एडिक्वेट लिक्विडिटी देनी पड़ेगी. सो बैंक्स आर नाउ फोर्स्ड टू गिव, बैंक्स को जो जितने भी रियल एस्टेट बिल्डर्स है उनको पैसा देना पड़ेगा. तो पैसा देंगे तो कंस्ट्रक्शन होगा तो मेटल्स की डिमांड आएगी, तो मेटल्स के प्राइस मोमेंटरी ऊपर जाएंगे. सो अगर मुझे कोई पूछेगा कि इज दिस द चेंज ऑफ डायरेक्शन, क्या ये बड़ा तेजी का इंडिकेशन है? नो, दिस इज जस्ट अ पुल बैक. ये एक पुल बैक है. इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी तेजी आ जाने वाली है या बहुत बड़ा अपमूव आने वाला है. सो फॉर द डे और टू, द ट्रेंड इज बाय इन डिप्स. कल, जैसे हिरल ने कहा, कल यूरोप का इन्फ्लेशन का डेटा है. तो यूरोप का इन्फ्लेशन अगर बढ़ के आता है यूएस की तरह, तो ऑटोमेटिकली जो डॉलर इंडेक्स है वो थोड़ा और कमजोर हो सकता है और यूरो थोड़ा अप्रिशिएट हो सकता है. सो दैट इज आल्सो पॉजिटिव फॉर कमोडिटी ट्रेडर्स. सो फिलहाल बाय एट डिप्स की रणनीति एक अच्छी चॉइस है. करेक्ट. सो कुणाल, ये बाय ऑन डिप्स इज द स्ट्रेटजी जो अक्रॉस कमोडिटी मार्केट्स में यूज करेंगे कि खाली गोल्ड, सिल्वर और बेस मेटल्स के लिए? No, it is for the across commodity, because जब डॉलर depreciate होता है, जैसे हमने आज देखा है 107.33, और उसके चलते हुए ऑलरेडी हमने कमोडिटी में एक रैली आते हुए देखी है. सो मैं बाय डिप्स इसलिए कह रहा हूँ कि हमने आज मॉर्निंग सेशन में बहुत अच्छी अपसाइड देखी सब कमोडिटी में. हमने सभी कमोडिटी में आज बाय कॉल दिया था, सभी के ऑलमोस्ट टारगेट आ गए. और अभी भी मुझे लगता है कि बेचना नहीं है, नीचे आता है तो लेके काम करना है. क्रूड ऑयल, I will go into commodity specific later, but this is the trend for 1 or 2 days. Right.
And overall, if you have to see in terms of crude and natural gas, तो आपका क्या राय है? Yeah, so crude में आज morning को OPEC has come up with a statement that वो रशिया की अनुमति के बिना कोई भी प्रोडक्शन बढ़ाएगा नहीं. सो ओपेक की जो भी मीटिंग होगी ओपेक की और यूएस की जो मीटिंग हुई उसमें सऊदी अरेबिया ने खुला कह दिया कि मैं कोई प्रोडक्शन बढ़ाने वाला नहीं हूँ. जो भी प्रोडक्शन बढ़ेगा वो ओपेक मीटिंग में सब मेंबर्स डिसाइड करेंगे, उसके बाद ही प्रोडक्शन बढ़ेगा. तो ये सेंटिमेंटली क्रूड के लिए थोड़ा पॉजिटिव है और इसके चलते हुए ऑलरेडी क्रूड में बड़ी अपसाइड आ गई है. मॉर्निंग में है ऑलरेडी 2% अप है, पर मैं क्रूड में ज्यादा बुलिश नहीं हूं. मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो डिमांड ग्रोथ कम होने वाला है उसके चलते हुए क्रूड में लंबी तेजी नहीं आएगी. आज इवनिंग सेशन में मैक्सिमम 8020 8030 तक कच्चा तेल जा सकता है, उसके ऊपर मुझे कच्चा तेल जाएगा ऐसा मेरा मानना नहीं है. नेचुरल गैस ऑन द कॉन्ट्ररी is looking better because of the weather forecast for this week is quite dovish. तो इसके चलते हुए नेचुरल गैस मुझे 568 के आसपास बाय करने को लग रहा है. ऊपर में 580-82 के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं. नेचुरल गैस रिलेटिवली बेटर चॉइस है एज कंपेयर टू क्रूड. Right. And any specific strategy, Kunal, base metals में for copper, aluminium, lead? कॉपर 6 ऑलरेडी हमने 12 रुपया अभी ऊपर चल रहा है. 632 का हाई मारते हुए देखा है आज. अराउंड 626 625 कॉपर बाय कीजिए. फिर से 631-32 आता है, वहां पे प्रॉफिट बुक कीजिए. यू शुड कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ द स्ट्रेटजी अराउंड 622 के नीचे नहीं जाना चाहिए. ये दिस इज फॉर ट्रेडर्स. इवन फॉर एल्यूमिनियम भी मुझे अच्छा लग रहा है. एल्यूमिनियम भी आप 20650 के आसपास बाय कर सकते हैं. एल्यूमिनियम ऊपर में 209-20950 तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है. जिंक ऑल्सो इन इवनिंग सेशन कैन गो अप एंड टेस्ट लेवल्स ऑफ 275-276. सो आज इवनिंग सेशन में 1-2 रुपया मौजूदा स्तर से 2-3 रुपया कॉपर गिरता है तो 1-आध रुपया एल्यूमिनियम गिरता है, 1-आध रुपया जिंक नीचे आता है, तब आपको ये कमोडिटीज में बाय करके काम करना चाहिए. Right. So these are the strategies that one should be following as well. Kunal, in terms of questions, एक ही है. गोल्ड में व्यू दीजिए. we've spoken about it, और नेचुरल गैस का भी we've discussed. So gold again I'm saying gold मुझे लग रहा है कि नीचे में ऑलरेडी 400 रुपए ऊपर है, सिल्वर 600 रुपए ऊपर है, तो 150-200 रुपए का करेक्शन आता है. दैट ब्रिंग्स गोल्ड टू अराउंड 50,380 50,350 के बीच में गोल्ड में बाइंग करनी चाहिए. सिल्वर ऑल्सो अराउंड 55,780 800 के बीच में है, आप बाय कर सकते हैं. दोनों में मुझे इवनिंग सेशन में स्पाइक नजर आ रही है. गोल्ड फिर से 50,650 700 के लेवल्स दिखा सकता है. सिल्वर फिर से 56,500 तक के लेवल्स दिखा सकता है. सो बाय डिप्स की स्ट्रेटेजी गोल्ड सिल्वर में रखिए. Right. And Kunal, any specific view in terms of dollar index? There's a question coming in. Okay, डॉलर इंडेक्स मैंने जैसे कहा पीक आउट हो गया है. डॉलर इंडेक्स ऑलरेडी इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 107 ड्यूरिंग इवनिंग सेशन. Right. So that's the view coming in overall in terms of commodities market. Thank you, participants, for joining in, and we appreciate this kind of participation on a regular basis. Thank you, and thank you, Kunal, as well. Subscribe to our YouTube channel for in-depth interviews of India Inc. and press the bell icon so that you do not miss our updates.